کو معلوم ہے کہ جو بھی پولوشن ہوتا ہے اس دنیا میں، اس سنسار میں، چاہے ایئر پولوشن ہو، لینڈ پولوشن ہو، واٹر پولوشن ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سارے پولوشنز ملا کے ہمیں گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ جو بھی زہریلی گیسوں کا جو ہے جماؤ ہمارے ماحول میں جمع ہوتا ہے، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات نعیم صاحب نے کری، اور دوسری زہریلی گیس کاربن مونوکسائڈ گیس، جو آپ چولہا جلاتے ہیں گھر میں، گیس جلاتے ہیں یا لکڑی جلاتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، وہ کاربن مونوکسائڈ گیس امٹ کرتا ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ ماحول میں یہ زہریلی گیس جمع ہو جاتی ہے اور تاپمان دنیا کا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہی درجہ حرارت زیادہ، گرمی زیادہ ماحول میں ہو جائے گی، آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تاپمان بڑھ رہا ہے، 40 ڈگری یہاں کشمیر میں بھی ہو رہا ہے آج، ہے نا؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارے یہاں 35 ڈگری، 37 ڈگری، 40 ڈگری، یہ ہم نے دہلی میں دیکھا تھا، یہ ہم نے راجستھان میں دیکھا تھا 50 ڈگری، لیکن ہمارے جموں کشمیر میں بھی ویسے حالات بن رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ گلوبل وارمنگ کا ہی سبب ہے۔ اور گلوبل وارمنگ انوائرمنٹلسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک جو ہیں ڈوب جائیں گے اس سے، جیسے ہمارے گلیشیئرز جو ہیں پگھل رہے ہیں، تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سیاچن دیکھو ہمارا بھارت کا، وہ پگھل رہا ہے، کوئی ہمالیہ میں جو نکلنے والے گلیشیئرز ہیں، دنیا کے گلیشیئر جو پگھل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سمندر میں جو ہے سمندری لیول بڑھ رہی ہے، یعنی سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے، تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بہت سے ممالک جو ہے ڈوب جائیں گے پانی کے نیچے۔ تو جیسے ہمارے پاس ہے جو نیوزی لینڈ ہے، نیوزی لینڈ تو سطح سمندر سے نیچے ہے، تو ایسے ایسے ممالک، ہمارے ہندوستان کے بھی بہت سی جگہیں ہیں جو ڈوب سکتی ہیں۔ مالدیوز ہے، مالدیو ہمارا جو ہندوستان کے ساؤتھ میں پڑتا ہے، ساؤتھ ویسٹ میں پڑتا ہے، تو وہ بھی خطرے کی جو ہے گھنٹی بج رہی ہے وہاں پہ، اور انڈونیشیا میں بھی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ بہت سے ممالک، بہت سی جگہیں سمندر کے نیچے جو ہے ڈوب جائیں گی، پانی اوپر آ جائے گا۔ یہ کس سے؟ گلوبل وارمنگ سے۔ تو اس بات کو لے کر آج نعیم صاحب نے بھی کھل کر بات کری، تو ہمارے سامنے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی ہیں، تو وہ مزید اس بات کو لے کر جو ہے اس کا اختتام بھی کریں گے۔ میں سیدھے اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب مکرمی سعید ضیاء الرحمان سر سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آج کے حوالے سے، آج کے اس متبرک دن کے حوالے سے ان بچوں کے گوشے گزار کرے اپنی انمول باتیں۔ ضیاء الرحمان سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ طیبین اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پیشہ و ہم سفر اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے محترم فردوس صاحب آئے۔ فردوس صاحب نے بہت ہی مدلل اور مفصل، یعنی تفصیل سے، یہ مدلل اور مفصل ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، میرا کہنے کا مطلب ہے ڈیٹیل میں انہوں نے آپ سے بات کی انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے، یہ دن کیوں ہم مناتے ہیں، ماحول کس کو کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو ماحول کہتے ہیں، اور اس ماحول کو خرابی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ یہ تو میں اگر پھر دہراؤں گا تو مجھے لگتا ہے ریپیٹیشن ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سے آپ کو سبھی کچھ سمجھایا، پورا ایکو سسٹم سمجھایا انہوں نے، ایکولوجیکل بیلنس سمجھایا انہوں نے، ہے نا، اس پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نعیم صاحب آئے،
उन्होंने भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं बिल्कुल सीधी और सादी, लेकिन तब जब आप मेरी तरफ क्या रखोगे, ध्यान, क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। देखो बेटा, ये दिन मनाने का मुद्दा और मकसद क्या होता है। जब हम कोई भी दिन मनाते हैं, कोई भी दिन हम अपने स्कूल में मनाते हैं या अपने घरों में भी कोई दिन मनाते हैं, तो उसके पीछे कोई मुद्दा और मकसद होता है। 5 जून हर साल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मैंने यहां पे आप लोगों के सामने पहले आते ही अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक में से एक आयत बयान की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। यानी ये जो इंसान है, मतलब मुझे बताओ माहौल की जरूरत किसको है, ये माहौल अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाया है, पैदा किसके लिए किया है, बताओ। ये सारी चीजें जो इस माहौल में है ना, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा की हैं, बताओ जरा, इंसान के लिए, है ना। और इंसान को किस लिए पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है, इबादत के लिए। देखो बच्चों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इसी बारे में कि इंसान जो है, जो भी फसाद का मतलब हो गया कोई प्रॉब्लम, फसाद का मतलब क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, सुनते हो, फसाद का मतलब हो गया कोई प्रॉब्लम। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। यानी खुशकी के अंदर, खुशकी का मतलब क्या हो गया, खुशकी का मतलब क्या होगा, लैंड, ठीक है। और बाहर किसको बोलते हैं, हाँ, फिल बर्रे वल बहर, बाहर बोलते हैं पानी को, समंदर को। यानी समंदर में और जमीन के ऊपर जो भी गड़बड़ पैदा होती है, क्या पैदा होती है, जो भी गड़बड़ पैदा हो जाती। गड़बड़ का मतलब क्या है, देखो जब माहौल साफ होता था, इंसान इस माहौल को खराब नहीं करता था, उस वक्त टाइम पर बारिशें होती थी ना, टाइम पे बारिशें, ठीक है, फसलें भी अच्छी तरह होती थी, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता था, सॉइल एरोजन ज्यादा नहीं होते थे, फ्लड ज्यादा नहीं आते थे। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, डिफॉरेस्टेशन नहीं थी, तो ये सारा माहौल जो है ये बैलेंस से चल रहा था। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी खुशकी में और तरी में, यानी लैंड पर और समंदर में जो भी गड़बड़ पैदा होती है, फसाद पैदा होती है, बिमा कसबत ऐदिन नास, वो लोगों के अपने हाथों से गड़बड़ पैदा हो जाती है। आ रही समझ आप लोगों को। यानी इस माहौल को बिगाड़ता कौन है, इंसान बिगाड़ता है। इंसान के लिए अल्लाह ताला ने माहौल बनाया, लेकिन यही इंसान इस माहौल को खराब करता है। क्या करता है, खराब करता है यही इंसान इस माहौल को। कैसे खराब करता है, जंगलात का बेदरेग कटाया करके, सफाया करके, है ना, जंगलात की बेदरेग कटाई करके, जंगलात का सफाया करके, जिसको हम अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, समझते हैं, जंगलात को काटना। या हम प्लास्टिक का ज्यादा यूज करते हैं, ये प्लास्टिक भी अल्लाह ताला ने किस लिए बनाया है, इंसान के लिए, लेकिन इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों, देखो अगर हम बाजार से कोई चीज लाते हैं ना, मेरी तरफ ध्यान रखो, कोई चीज बाजार से खरीदते हैं तो पॉलीथीन के बैग में लाते हैं वो चीज भर के, है ना, ठीक है। तो दूसरे दिन हम वो बैग फेंक देते हैं किसमें, खेत में, और फिर जाते हैं दुकान पर, फिर लाते हैं एक पॉलीथीन बैग वहां से। आ रही समझ आप लोगों को। तो उससे क्या होता है, जब हम हर दिन पॉलीथीन लाएंगे तो घर में क्या होता है, कूड़े करकट का एक ढेर जमा हो जाता है, होता है ना। उसमें क्या होते हैं, पॉलीथीन होते हैं। वो पॉलीथीन जब खेतों में पड़ता है तो उससे खेत बर्बाद हो जाते हैं। आ रही समझ आप लोगों को। अगर उसको जलाएंगे तो ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, उससे माहौल खराब हो जाएगा, है ना, एयर पोल्यूशन हो जाएगी उससे। वही लिफाफे, वही डायपर, वही चीजें हम लेकर किस में डालते हैं, रनिंग वाटर बॉडीज जो है। अरे समझ आप लोग, रनिंग वाटर बॉडीज हो या एक जगह कोई वाटर बॉडी हो जो रनिंग ना हो, उसको भी, वो भी खराब हो सकती है। अरे समझ, अगर हम उसको उसमें डालेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है, जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं, उस पॉलीथीन को हम एक पिट बनाने चाहिए, गड़ा बनाने चाहिए, उस गड़े में उसको क्या करना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए। आ रही समझ, जिसके ऊपर एक लिड हो, या उसके अंदर फिर हम उसको वेस्ट भी कर सकते हैं। आ रही समझ।
तो किसी भी तरीके से हमें उसको ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए जहां पर क्या होता है, स्टोरेज के लिए, मतलब डंपिंग साइट्स पर ले जाना चाहिए, ना कि खेतों में। और ये समझ, अब हम किस तरह इसको इससे काम कर सकते हैं, जो नईम साहब ने बताया, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। कैसे रीयूज कर सकते हैं? अगर आपके पास घर में ठेला होगा ना, बैग 10-20 रुपए का बैग मिलता है, वो बैग लेकर जाओ का दुकान पे, वहां से जो चीजें लानी होगी उस बैग में लाओ, ठीक है? अरे समझ आप लोगों को। अब अगर किसी वक्त आपके पास बैग नहीं था, आपने पॉलीथीन ले लिया, क्या काम करो, जब दोबारा जाओगे दुकानदार के पास, वही पॉलीथीन का बैग ले जाओ, उसी में चीज लाओ। उसको बोलते हैं रीयूज। क्या बोलते हैं? जो नईम साहब फरमा रहे थे, रीयूज, ठीक है? उसी को बार बार यूज करो। क्या करो? उसी को बार बार यूज करो। दूसरी बात, हम ये पानी पीते हैं ना, पानी जो हम बाजार से खरीदते हैं, पोर्टेबल वाटर बोतलों का, वो मत खरीदो, घर से ले जाओ। स्टील की बोतल एक रखो घर में, घर से पानी की बोतल भर के ले जाओ। आप इस वक्त कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 200 बचे हैं ना, 200 बोतल बचा सकते हैं आप लोग, है ना? इन्वायरमेंट को, मतलब डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए, जो आपके माँ बाप हैं जो जंगल से छोटे छोटे बूटे काट कर लाते हैं जंगल के, है ना, उनको बोलो ये नहीं काटना। क्यों? ये दरख्त जो है ये ऑक्सीजन देते हैं हमें, है ना? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जहरीला गैस है, वो ये पीते हैं। इस तरह हमारा माहौल साफ रहता है, इस तरह बेवकत बर्फ नहीं होती है, खुशक साली नहीं होती है। अरे समझ, तो तभी गवर्नमेंट ने भी इस पर पाबंदी रखी। आप अपने माँ बाप को रोक सकते हो कि जंगल के बूटे मत काटो, यानी डिफॉरेस्टेशन से रोक सकते हो आप उनको। जब आप बोलोगे तो उनके माइंड में ये बात आएगी जरूर कि हमारे बच्चे ने बोला, हमने इसको तालीम हासिल करने के लिए छोड़ा, इसका मतलब इसने कोई बात सीखी है वहां पर, वो भी समझ जाएगा। आप उनको बोल सकते हो जैसे हमारे अंदर लाइफ है, इस तरह इन दरख्तों के अंदर भी क्या है? लाइफ। इसलिए इनको नुकसान मत करो। रियूज रिड्यूस इसी तरह से हो सकता है। जब हम एक ठेला ले जाएंगे तो दोबारा फिर ले आएंगे उसी में, है ना? रिड्यूस का मतलब हो गया आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। हम कपड़े का थैला लाएंगे, उसमें ले जाएंगे, ठीक है? तो रिसाइकल भी चलता रहता है काम, हुकूमत की सतह पे रिसाइकलिंग का काम भी चलता रहता है। हमें क्या चाहिए? अब अगर जंगलात को काटा है, अब हमें उसके बदले क्या करना चाहिए? एक एक दरख्त हर किसी को क्या करना चाहिए? एक एक दरख्त सबों को लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 200 हैं, एक एक दरख्त लगाएंगे तो कितने दरख्त लगेंगे? 200। दूसरी बात, मैंने जो दूसरी आयत तिलावत की थी, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। अल्लाह ताला फरमाते हैं खाओ और पियो, बोला तुसरिफू, लेकिन इसराफ नहीं करना। इसराफ का मतलब हो गया हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। जितना आपको यूज करना है ना उतना ही करो, बेतहाशा यूज किसी चीज का मत करो। आ रही है समझ आप लोगों को? तो ये दिन हमें यही पैगाम देता है। हम आज ही कदम उठाएंगे, हम एक एक पौधा लगाएंगे सारे, आ रही समझ? और घर वालों को बोलेंगे हम लिफाफे में चीज नहीं लाएंगे। पता है लिफाफे में जब चीज लाते हैं ना, उसमें भी जहरीले मवाद होते हैं, वो अंदर जाते हैं खाने के साथ। आ रही समझ? और हम किस में लाएंगे दुकान से चीज? ठेले में, कपड़े के ठेले में। आ रही समझ आप लोगों को? कोई हद की बात नहीं है, वो अच्छा है, होता है कपड़े का, जो बाजार में बिकता है ना ठेला, 20 रुपए का ठेला बिकता है, वो एक एक ला के रखेंगे घर में, ठीक है? तो जितना हमसे हो सकेगा हम अपने माहौल को इस आलूदगी से, इस पोल्यूशन से, इस खराबी से, डिफॉरेस्टेशन से, क्या नाम लेते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग से हम अपने आप को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। ये माँ जमीन जो है, इसको हम इस आलूदगी से बचा सकते हैं तभी जब हम कोई इसकी तरफ कोई प्रैक्टिकली कोई कदम उठाएंगे। तो उठाएंगे ना इंशाल्लाह? उठाएंगे? पौधे लगाओगे? प्लास्टिक का यूज कम करोगे? जरूर, है ना? तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खत्म होने हमारे हेडमास्टर साहब के प्रोग्राम के हवाले से सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और आज प्लेज लेंगे इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मुतालिक। तो सभी असातिज़ा किराम जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। रिसाइट विथ मी, ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे I pledge to protect and preserve nature. I will reduce waste, save water, and plant
trees. I will respect all living beings and promote a cleaner, greener planet. Together, let us build a sustainable future for generations to come. Thanks.